Every road has a destination, but only a few journeys have the power to change your story. This wasn't a trip we planned for months. It started with one simple idea, to meet a friend. But somewhere along the way, the mountains had a completely different plan for us. Hello guys, welcome back to the channel. I hope you are amazing. If you are new here, my name is David and today I am taking you one of the most unforgettable journey of my life. So grab a cup of tea, sit back and let's begin this adventure together. What started in Assam will take us to ancient forests, historic bridges, powerful rivers, peaceful mountain villages, and finally into the heart of Sikkim. Along the way, we will discover history, local culture, temples, hidden stories, breathtaking landscape, and one unexpected decision that changed our entire journey. So if you love road trips, mountain travel stories and discovering places beyond the tourist approaches, you are in the right place. Fasten your seatbelt because our journey begins now. Sometimes the best journey don't begin with a destination. They begin with a simple decision to leave home. Every great adventure began with a simple step, and our began before the sun had fully risen. Welcome back guys, I hope all of you are doing great. Our plan was simple, we are leaving Assam to meet a friend in Lamahata. At the moment, we don't have an idea. This journey will become one of the most memorable experiences of our lives. असम भारत के नॉर्थ ईस्ट का एक खूबसूरत स्टेट है जो अपने चाय के बागानों, ब्रह्मपुत्र रिवर और रिच कल्चर के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। Every kilometer carried us further from home and closer to a story we never expected. असम सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए ही नहीं है, बल्कि काजीरंगा नेशनल पार्क, वन हॉर्न राइनोसोरस और दुनिया की बेहतरीन टी इंडस्ट्री के लिए भी मशहूर है। सफ़र के शुरुआती किलोमीटर ही हमें याद दिला रहे थे कि हम एक इनक्रेडिबल रीजन से निकल रहे हैं। हमारा डेस्टिनेशन था लामाहाता। अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस 600 किलोमीटर से ज़्यादा था और हमें वेस्ट बंगाल के प्लेन्स और फिर हिमालय की फुट हिल तक पहुंचना था। एक लंबा सफर हमारा इंतजार कर रहा था। Sometimes the destination give you memories, but sometimes the road itself become the memory. हर पासिंग किलोमीटर के बाद एक्साइटमेंट बढ़ रहा था। हमें नहीं पता था कि इस सफ़र में हम क्या क्या देखने वाले हैं, लेकिन एक बात पक्की थी, ये जर्नी ऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं होने वाली थी। और कुछ घंटों बाद हम वेस्ट बंगाल की तरफ बढ़ रहे थे। माउंटेन अभी दूर थे, लेकिन उसका एहसास सफ़र में शामिल होने शुरू हो चुका था। Next chapter, the gateway to the Himalayas, Siliguri. Every road leaves tire mark on the ground, but the best journey leaves memory in the heart. Remember how I make it all, the tones up like crazy, and it just feel like it's on me up. She say my like it, I cannot be up, but just give my friend away from Miss Neck a plea. But the reason our songs the echo showing the stream. Every great Himalayan adventure passing through one city, a place where the busy plains slowly give way to the mountains. Welcome to Siliguri, the gateway to the Himalayas. Beautiful,
view. For just to get us that forward, I bring higher. I can't carry. वेलकम बैक गाइस, फाइनली हम सिलीगुड़ी पहुंच चुके हैं। वेस्ट बंगाल का ये वाइब्रेंट सिटी सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिक्किम, भूटान और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जाने वाले ट्रैवलर के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांजिट स्टॉप है। A city becomes important not because of its size, but because of the journey it connects. कभी ये एरिया घने फॉरेस्ट और छोटी बस्तियों का हिस्सा था। ब्रिटिश पीरियड में दार्जिलिंग टी ट्रेड और रेलवे नेटवर्क के डेवलपमेंट होने के बाद सिलीगुड़ी की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। आज ये नॉर्थ बंगाल का मेजर कमर्शियल और ट्रांसपोर्ट हब है, जहाँ से हर रोज़ हज़ारों लोग हिमालय की तरफ अपना सफ़र शुरू करते हैं। Before chasing mountain, many travelers choose to begin with blessing. सिलीगुड़ी का इस्कॉन टेम्पल अपने पीसफुल एटमॉस्फेयर और ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ रोज भजन, आरती, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होते हैं। बहुत से ट्रैवलर अपनी जर्नी कंटिन्यू करने से पहले यहाँ कुछ पल शांति से बिताते हैं। इसी तरह बाबा लोकनाथ टेम्पल भी लोकल लोगों के बीच बहुत श्रद्धा के केंद्र है। फेस्टिवल के दौरान यहाँ का माहौल और भी वाइब्रेंट हो जाता है। The true flavor of a city is found in its street. शॉपिंग के लिए हांगकांग मार्केट काफ़ी फेमस है और फूड लवर के लिए सिलीगुड़ी एक ट्रीट है। गर्मा गर्म मोमोज, थुक्पा, चाउमीन और नॉर्थ बंगाल की चाय यहाँ के पॉपुलर चॉइस है। सिलीगुड़ी के पास ही महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। यह सेंचुरी एलिफेंट, लियोपार्ड, डियर और कई बर्ड स्पीसीज का घर है। अगर आप नेचर लवर हो तो ये एरिया नॉर्थ बंगाल की डाइवर्सिटी को करीब से देखने का बेहतरीन मौका देता है। And then the city slowly faded behind us. बिल्डिंग्स की जगह अब ग्रीनरी बढ़ रही थी, ट्रैफिक कम हो रहा था, हवा थोड़ी ठंडी लगने लगी थी और हमें महसूस हो रहा था कि हिमालय अब सच में हमारे करीब है। The real adventure wasn't waiting at the destination. It had already begun. और अब हमारा अगला स्टॉप था सेबोग, जहाँ से नॉर्थ बंगाल की प्लेन्स ऑफिशियली हिमालयन फुटहिल को मिलते हैं। Did you know Siliguri is a part of the narrow Siliguri corridor, often called the Chicken Neck, a strategically important strip of land that connects mainland India with the northeastern state. Every road to the Himalayas has a beginning, and for countless travelers, the beginning is Siliguri. There comes a moment in every mountain journey when the road, the air, and even the silence begin to change. That moment for us was Sebok. सिलीगुड़ी की बिजी स्ट्रीट को पीछे छोड़ते ही हम सेबोक पहुंच गए। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का ये छोटा सा टाउन प्लेन्स और हिमालय के बीच का नेचुरल गेटवे माना जाता है।
सेवक का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में जंगल, तीस्ता रिवर, क्रॉसिंग ब्रिज की इमेज आ जाती है। ये एरिया महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लैंडस्केप का हिस्सा माना जाता है और हिमालयन फुटहिल की शुरुआत यहीं से महसूस होने लगती है। Before entering the mountains, many travelers push here, not because they have to, but because they want to. सेवक काली मंदिर, जिसे कोरोसन ब्रिज के पास स्थित होने की वजह से बहुत लोग पहचानते हैं, माँ काली को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। दार्जिलिंग और सिक्किम की तरफ जाने वाले कई ट्रैवलर यहाँ रुककर दर्शन करते हैं और अपनी जर्नी के लिए आशीर्वाद लेते हैं। नवरात्रि और काली पूजा के दौरान यहाँ भक्तों की खास भीड़ देखने को मिलती है। Sometimes the greatest luxury isn't a five-star hotel. It's the sounds of the wind through the trees. यहाँ का जंगल एलिफेंट, बार्किंग डियर, हिमालयन बर्ड्स और कई दूसरे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के लिए जाना जाता है। इसी वजह से फॉरेस्ट एरिया में ड्राइविंग करते वक्त स्पीड कंट्रोल और वाइल्ड लाइफ का रेस्पेक्ट करना जरूरी है। और फिर पैरों के बीच से हमें पहली बार तीस्ता रिवर की झलक दिखाई दी। एमरल्ड ग्रीन पानी और उसके आसपास के पहाड़ देखकर लगा कि हिमालय ने हमें ऑफिशियली वेलकम कर दिया। Every bend revealed a new landscape and every kilometer made us forget the city behind. अब रोड और भी सैनिक हो गई थी। हवा ठंडी थी, जंगल घना था और एक्साइटमेंट हर मिनट बढ़ रहा था। और कुछ ही देर बाद हमारे सामने आया नॉर्थ बंगाल का एक लेजेंडरी लैंडमार्क, एक ब्रिज जो सिर्फ दो किनारों को नहीं बल्कि हिस्ट्री और इंजीनियरिंग को भी जोड़ता है। वेलकम टू द कोरोनेशन ब्रिज। डिड यू नो, सेवक का नाम लोकल हिस्ट्री में बहुत पुराना माना जाता है और ये एरिया आज भी नॉर्थ बंगाल से सिक्किम और दार्जिलिंग जाने वाले सबसे सीनिक रूट्स में से एक है। द माउंटेन्स नेवर अनाउंस देयर अराइवल, दे सिंपली मेक यू फील दैट यू हैव एंटर्ड अ डिफरेंट वर्ल्ड। Some bridges are built to connect places, but a few become timeline symbol of history, engineering, and unforgettable journey. Standing before us was one of them. हम आ चुके थे नॉर्थ बंगाल के सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क में से एक, कोरोसन ब्रिज। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में तीस्ता रिवर के ऊपर बनाया यह ब्रिज सिर्फ एक क्रॉसिंग पॉइंट नहीं बल्कि इस रीजन की सबसे इंजीनियरिंग और हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट सिंबल है। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन 1937 में शुरू हुआ और 1941 में कंप्लीट हुआ। इसका नाम किंग जॉर्ज VI के कोरोसन की याद में रखा गया था। इसका यूनिक आर्क डिजाइन उस दौर की इंजीनियरिंग का एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल माना जाता है। ब्रिज के दोनों किनारों पर बने शेर के स्कल्पचर इसकी पहचान बन चुकी है और इसी वजह से कई लोकल लोग इसे बागपाल के नाम से भी जानते हैं। इमेजिन ए ब्रिज like this between steep mountains and a powerful river without today's machine. उस वक्त के इंजीनियर्स के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत चैलेंजिंग था। आज भी ये ब्रिज नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की तरफ जाने वाले ट्रैवलर के लिए एक अनफॉरगेटेबल लैंडमार्क बना हुआ है।
And beneath this bridge flows, the river that has saved this mountain for centuries, the mighty Tista. टिस्टा रिवर्स का सोर्स नॉर्थ सिक्किम के ग्लेशियर के पास माना जाता है। लगभग 315 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए ये रिवर वेस्ट बंगाल से निकलकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से जा मिलता है। इसने इस पूरे रीजन के ट्रेड, फार्मिंग और डेली लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाया है। नेचर डजंट हरी, yet it creates wonder that lasts forever. टिस्टा का इमरल ग्रीन पानी, उसके आसपास के पहाड़ और जंगल मिलकर ऐसा लैंडस्केप बनाते हैं जिसे देखकर हर ट्रैवलर कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। एडवेंचर लवर के लिए टिस्टा रिवर राफ्टिंग के लिए भी काफ़ी फेमस है। रिवर का फ्लो सीजन के हिसाब से बदलते रहता है, इसलिए राफ्टिंग भी ट्रेन ऑपरेटर के साथ ही करनी चाहिए। Some view stay on your camera, but the best one stay in your heart. सच कहूँ इस जगह को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन सफ़र अभी बहुत बाकी था। डिड यू नो, कोरोसन ब्रिज को आज भी नॉर्थ बंगाल के सबसे फोटोजेनिक ब्रिज में से एक माना जाता है और ये दार्जिलिंग सिक्किम रूट का आइकॉनिक लैंडमार्क है। Sometimes the most beautiful journey don't reveal everything at once. कोरोनेशन ब्रिज तक का सफर हमें प्लेन से हिमालय के दरवाजे तक ले आया, लेकिन असली माउंटेन एडवेंचर अभी शुरू होने वाला है। अगले एपिसोड में हम इस आइकॉनिक ब्रिज को पीछे छोड़कर टिस्टा वैली के साथ साथ कालीजोरा, टिस्टा बाजार, तादाक और लामाहाता की तरफ बढ़ेंगे और वहीं पर एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन हमारी पूरी जर्नी की डायरेक्शन बदल देगा। If you enjoyed this journey, don't forget to like the video, share with your traveler buddies and subscribe to the channel. Trust me, the next chapter is where this journey truly becomes unforgettable. I will see you in the next episode. Last line, my favorite. Every ending is just another beginning and our story is only getting started.